adjustments and we have done the adjustments in categories. तो categories कौन से थे? Closing stock, then outstanding and prepaid, new bad debts and new RDD, reserve for discount on debtors and creditors, depreciation, then interest के adjustments, then adjustments related to goods and adjustments related to partners. Okay, so these were the categories and in all we have done 20 adjustments last time around. ठीक है, so let us continue with some certain further adjustments. तो further कौन से adjustments हमें आज करने हैं? So they are unrecorded sales slash purchase. This is the next category, unrecorded sales slash purchase. Adjustment number 21. Now unrecorded sales पहला लेते हैं. So unrecorded sales का what would be the first effect? तो सबसे पहला effect क्या आएगा? So the word says कि it is an unrecorded sales. तो sales unrecorded है, तो सबसे पहले उसको record पड़ेगा. और sales को हम कैसे record करेंगे? तो sales को हम record करेंगे by adding it to sales. तो सबसे पहला entry है उसका add to sales. So this is the first effect. और sales में add करना है हमें, तो sales कहां पे होता है? Sales में add करना है on trading account credit side. So you have to add it to sales on trading account credit side. This is first and second effect. चलो second effect कहां पे जाएगा? तो याद रखना कोई भी चीज if you are adding it to sales तो sales बढ़ता है तो सामने debtors बढ़ता है. So if the sales are unrecorded तो sales increase होगा और sales के साथ साथ debtors का value increase होगा. So the second effect for this is add to debtors on balance sheet asset side, on asset side of balance sheet. I hope this is clear. Done. So this is unrecorded sales. 21st adjustments. Unrecorded sales के बाद next adjustment जो हम करेंगे 22nd, that will be unrecorded purchases. Unrecorded purchases. अब unrecorded purchases, unrecorded sales की तरह क्या होगा? Unrecorded sales हमने क्या किया था? Unrecorded sales हमने किया था. Unrecorded purchases को हम क्या करेंगे? यहाँ पे purchase not recorded है तो हम ऐड करेंगे. कहां पे ऐड करेंगे? Add to purchases on trading account debit side. Trading debit side. So we are going to add it to purchases on trading debit side, and then the second effect for this will be purchases में ऐड किया कोई भी चीज तो परचेस रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो क्रेडिटर्स में भी इफेक्ट नहीं गया रहेगा. एंड दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट व्हेन वी आर एडिंग समथिंग टू परचेसेस द सेकंड इफेक्ट विल बी एडिंग इट टू क्रेडिटर्स. तो सेकंड इफेक्ट में हमको देना है ऐड टू creditors, add to creditors on liability side of balance sheet.
These are the two effects as far as unrecorded sales and unrecorded purchases are concerned. ठीक है, तो ये हो गया 21st and 22nd एडजस्टमेंट्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ये नेक्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हुआ. उसके बाद डिसऑनर्ड बिल्स, डिसऑनर्ड बिल्स का एंट्री करते हैं. बॅकग्राऊंड व्हॉइस नको कोणाचा. चलो, डिसऑनर्ड बिल्स में एडजस्टमेंट नंबर 23, डिसऑनर्ड बिल में सबसे पहला आएगा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड. तो अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ तो एंट्री क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ है मतलब उसको कैंसिल करना है, और बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल. और बिल्स रिसीवेबल होता कहां है? लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल. तो बिल्स रिसीवेबल होता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल करेंगे ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. सो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल जो होता है उधर से हमें लेस करना पड़ेगा व्हेनेवर बिल्स रिसीवेबल गेट डिसऑनर्ड. एंड द सेकंड इफेक्ट फॉर दिस इज ऐड करना है हमें, add to debtors. So we have to add to debtors on asset side of balance sheet. So let us understand this adjustment. ये adjustment में देखो क्या हुआ, ये adjustments asset नहीं हुआ, यानी एक एसेट साइड वाला आइटम जो है बिल रिसीवेबल उसका अमाउंट हमने किया, और दूसरा जो आइटम है एसेट वाला डेटर्स उसका अमाउंट हम इंक्रीज किया. सो दिस इज व्हाट दिस एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट. सो ये एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड और जो नेक्स्ट आने वाला बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ये दोनों भी एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट के सेम साइड में हो रहे हैं. एक अकाउंट कम हो रहा है और दूसरा अकाउंट बढ़ रहा है. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दिस एडजस्टमेंट एज. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 24. अब हमने बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड देखा था, सिमिलरली वी विल बी डूइंग बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड का एडजस्टमेंट. बिल पेएबल डिसऑनर्ड का एडजस्टमेंट्स अब सेम एडजस्टमेंट्स है, सिमिलर स्टाइल में करेंगे, लेकिन अभी जो हमको डिसऑनर बिल हुआ है वो पेएबल है, इसीलिए हम उसको लेस करेंगे, लेस फ्रॉम bills payable. So we'll be deducting it from bills payable. This is the first effect. और bills payable होता कहां है? On liability side of balance sheet. Okay, this is the first effect. And the second effect for this will be, अगर साइड में से लेस किया, मैंने आपको बोला था ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट सेम साइड ऑफ बैलेंस शीट में हो रहा है, तो अगर लायबिलिटी साइड से एक आइटम लेस किया तो लायबिलिटी के दूसरे आइटम में हमें ऐड करना है. तो कौन से आइटम में हम ऐड करेंगे? तो ऐड टू क्रेडिटर्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, सो दिस वाज द एडजस्टमेंट्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड. ठीक है, सो ये दो कैटेगरीज आज हमने किए, एंड विद दिस
हम ये कैटेगरीज के एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडजस्टमेंट्स. हम इतने एडजस्टमेंट्स हमारे सम्स में करने वाले हैं. इसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स आपको सम्स में आएंगे जब हम सम्स करने वाले हैं. ठीक है. प्लस अभी ओवर एंड अबाउ इसके बाद हमें क्या करना है. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एडजस्टमेंट्स हम करने वाले हैं सर्टेन हिडन एडजस्टमेंट्स. ओके. So now what we are going to do, we are going to do some different kind of adjustment जो hidden होते हैं. अब hidden adjustments मतलब क्या? तो hidden adjustments are that adjustments which are not specifically given in the बैलेंस शीट. मतलब क्वेश्चन में अपने को स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं है एज एन एडजस्टमेंट. ठीक है. सो आपको पहला ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और उसके बाद जो स्पेसिफिकली दिए रहते हैं वो आपके स्पेसिफाइड एडजस्टमेंट्स होते हैं. बट हिडन एडजस्टमेंट्स आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. ओके. और ये हिडन इसीलिए क्योंकि वो लोग स्पेसिफिकली लिख के नहीं देते. आपको क्या करना है, आपको समझना है ये एडजस्टमेंट्स देख के कि इससे सर्टेन इफेक्ट पास करने हैं. ठीक है. सो लेट अस नाउ गो थ्रू ऑल द हिडन एडजस्टमेंट्स दैट आर एक्सपेक्टेड इन आवर स्टैंडर्ड 12. ठीक है. सबसे पहला मैंने कॉलम्स देखो क्या क्या बनाया. सीरियल नंबर का कॉलम है, एडजस्टमेंट लिखेंगे जो हिडन रहेगा और उसका मीनिंग लिखेंगे. तो ये हिडन एडजस्टमेंट्स का अपने को मीनिंग समझना है कि एडजस्टमेंट्स क्या बोलना चाह रहा है हमें. Accordingly, we will be seeing the first effect and second effect of it. ठीक है. So today, along with the other adjustments, we are going to also do the hidden adjustments so that from the next lecture onwards, we are in a position to start with our practical problems. ठीक है. तो चलो hidden adjustments देखते हैं कौन से है. पहला hidden adjustment, salary स्लैश रेंट. ऐसा कोई तो आइटम पेड जो रहेगा, सैलरी स्लैश रेंट पेड, उसमें ट्रायल बैलेंस में ऐसा ब्रैकेट में लिख के समझो आया फॉर समझो 10 months. So this is the way the trial balance item would be looking. Salary slash rent for 10 months. ऐसा अगर बोल के आया तो इससे हमको समझना क्या है, पहले उसका मीनिंग जानता है. What does this says? So whenever यहाँ पे बोला 10 months, मुझे एक बात बताओ, हम बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो कितना टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं. हम जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो कितना months. We are drawing it for 12 months. बराबर. So all the expenses and all the incomes are to be taken in P&L account for 12 months. 12 months का इनकम एक्सपेंस हम लेते हैं. बट यहाँ पे जो सैलरी और रेंट हमने पे किया वो कितने मंथ्स का पे किया है, स्पेसिफिकली बोला है खाली 10 मंथ्स का पे किया है. उसका मतलब दे आर गिविंग अस हिडन एडजस्टमेंट है. कहीं बोलेंगे नहीं, आपको समझना है इसका मीनिंग. तो वो लोग क्या हमको हिडन मीनिंग इसका बताना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे मीनिंग के हेड में. दिस मीन्स उसका मतलब आउटस्टैंडिंग है. दिस मीन्स की आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट. ठीक है. सो दिस मीन्स द सैलरी और रेंट इज आउटस्टैंडिंग. और कितना टाइम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है, फॉर 2 months. सबसे पहले इफेक्ट क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग है ना. आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट विल बी एड सैलरीज. हमने पढ़ा था एड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस. हमने यहां पे एक्सपेंस का मैंने नाम लिखा है, तो मैं नाम के साथ लिखता हूं एड टू सैलरीज या रेंट, वॉट एवर इट इज. तो सैलरी या तो ऐड करना है डिपेंडिंग अपॉन सैलरी आउटस्टैंडिंग है या रेंट आउटस्टैंडिंग है. अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो सैलरी में ऐड करेंगे, अगर रेंट रहेगा तो रेंट में ऐड करेंगे. दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग. सेकंड इफेक्ट बताओ कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटीज.
बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है. So this will be the second effect. So do remember, whenever such kind of an adjustments appears in your trial balance, it means outstanding salaries, and outstanding salaries ka effect is add to salaries and balance sheet liabilities. Next, second kind of hidden adjustment that is expected. So outstanding हो गया, वैसे आ सकता है रेंट रिसीव्ड. अभी ये वो जो ऊपर हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था ये रेंट पेड था, तो ये एक्सपेंस था. अब ये रेंट रिसीव्ड है, सो रेंट रिसीव्ड ब्रैकेट में आ सकता है फॉर, समझो सेम वैसा ही लिखते हैं, या फॉर 11 मंथ्स चलो एज्यूम करता है, रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स. ठीक है, ऐसा अगर आया तो हम क्या करेंगे, व्हाट डज इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स, अगेन द सेम थिंग, द पीएनएल अकाउंट, द होल ऑफ योर फाइनल अकाउंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. लेकिन ये जो इनकम है ये आपको खाली 11 महीने के लिए मिला है, उसका मतलब एक महीने का इनकम आना बाकी है. ये एक्सपेंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इनकम है, बिकॉज दिस इज रेंट रिसीव्ड नॉट रेंट पेड. सो दिस इज योर इनकम. एक महीने का इनकम आना बाकी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम. मीनिंग ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेंगे हम उसे. So we won't be calling it as outstanding expense, we will be calling it as outstanding income. Okay, outstanding income कितने टाइम पीरियड का है, फॉर 1 मंथ, क्योंकि 11 महीने का मिला है तो एक महीने का अमाउंट बाकी है. ठीक है, चलो बताओ व्हाट इज द टू इफेक्ट्स दैट वी हैव स्टडीड फॉर आउटस्टैंडिंग इनकम. ये सारे इफेक्ट्स हमने सीखे हैं, खाली यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट्स का मीनिंग हमें समझना है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम का हमने क्या इफेक्ट सीखा, इनकम आउटस्टैंडिंग रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे, ऐड टू कौन सा इनकम है ये, रेंट रिसीव्ड. So we are going to add it to rent received. That is the first thing. ठीक है, and then second effect बताओ, outstanding income का second effect will be balance sheet asset side. very good, balance sheet asset side. Second effect will be balance sheet asset side. So these are two effects as far as rent received is concerned. So rent received is to be considered as an outstanding income, and accordingly outstanding income का दोनों effects हमें पास करना है. ठीक है, नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, तो वो कौन सा है. तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभार आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाजू में ऐसा लिखा रहेगा, समझो 5 years, ब्रैकेट में लिखा रहेगा 5 years. ठीक है, ना व्हाट डज दिस मीन्स, अगेन वही कॉन्सेप्ट अराइज होता है. अपना जो फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हो कितने टाइम पीरियड का बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं 1 साल का बना रहे हैं, जबकि ये जो एडवर्टाइजमेंट पे किया ये हमने कितने टाइम पीरियड का पे किया है, वी हैव पेड इट फॉर 5 years. ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पर अगर यहां पे देखने जाए तो 7. सो कॉन्सेप्ट देखने जाए यहां पे, तो देखो हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो कितने टाइम पीरियड का बनाते हैं, 1 साल का बनाते हैं, 1 year का, बराबर है. एडवर्टाइजमेंट कंसर्न इट इज टोटली पेड फॉर 5 years. 5 years में से फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो 1 साल का बना रहे हैं. दैट मीन्स वो बताना चाह रहे हैं कि 4 years का जो हमने एडवर्टाइजमेंट पे किया ये हमने एक्स्ट्रा पे किया, ज्यादा पे किया. सो वी विल बी कॉलिंग दिस एज प्रीपेड. सो प्रीपेड 4 years का हमने एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड किया है. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस. सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ लाइन व्हिच सेज एडवर्टाइजमेंट 5 years का, सो डू अंडरस्टैंड 1 year का व्हाट यू हैव पेड इज फॉर द करंट ईयर, बट जो आपने ज्यादा पे किया है वो आपका प्रीपेड है. तो इसका इफेक्ट कैसा दिखाएंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो चलो, मीनिंग क्या है, मीनिंग है प्रीपेड. So prepaid advertisement, this is what it means. And कितने टाइम का प्रीपेड है, फॉर
4 इयर्स, 5 इयर्स का प्रीपेड नहीं है, 4 इयर्स का प्रीपेड है। टोटल हमने 5 इयर्स का पे किया, उसमें से 1 साल का तो पे करना ही था, लेकिन 4 साल का हमने ज्यादा पे किया, सो 4 इयर्स का प्रीपेड है। सो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट्स का मुझे बताओ, व्हाट इज द इफेक्ट दैट यू आर गोइंग टू पास फॉर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट्स। प्रीपेड का हम एंट्री क्या करने वाले हैं बताओ। प्रीपेड हम क्या करते हैं, लेस फ्रॉम prepaid. एडवर्टाइजमेंट, Advertisement. Less from advertisement. Less from advertisement. लेट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। एंड सेकंड इफेक्ट फॉर दिस विल बी बैलेंस शीट। प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट, Liabilities. लायबिलिटीज, No. Asset, एसेट्स, liabilities was एसेट साइड, प्रीपेमेंट है, so it will be balance sheet asset side. Okay, so this is what it means. Fourth, hidden adjustments that can be expected, वो हम देखते हैं क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम, insurance premium paid for 1 year ending 30th June 2020. And dear students, for your knowledge, hint दे रहा हूं, the accounting year ends on 31st March 2020. Suppose this is what is expected, this is what is coming in trial balance. तो इसका मतलब क्या है, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया है वो हमने 1 साल का पे किया है, एंडिंग 30 जून 2020। तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 30 जून तक के लिए 2020, सो वी हैव पेड इट टिल 30 जून, जबकि आपका ईयर एंडिंग कौन सा है, 31 मार्च है। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिखा, आपने पे किया है, आपका ईयर मार्च में खत्म हो रहा है, सो मार्च 2020 को आपका साल खत्म हो रहा है, मार्च 2020 को आपका साल खत्म हो रहा है, लेकिन आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कहां तक पे किया है, तो आगे अप्रैल का भी पे किया आपने, अप्रैल 2020, क्योंकि आपने पे किया जून तक, तो अप्रैल हुआ, मई 2020 का भी पे हुआ है, एंड जून 2020 का भी अपने पे किया है। ठीक है, तो आपका साल खत्म हुआ था, मार्च में आपका ईयर खत्म हो चुका था, तो यहां तक ही पे करना था, लेकिन आपने आगे का 3 महीने का भी पे कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये 3 महीने को हम बोलेंगे, ज्यादा पे किया तो हम क्या बोलते हैं उसको, Paid. prepaid. अंडरस्टूड। ऐसा भी अगर आया देन ऑल्सो इट मीन्स प्रीपेड, तो इसका मीनिंग हमने अभी समझा है, मार्च तक पे करना था लेकिन हमने एक्स्ट्रा पे किया 3 महीने का, हमने जून तक पे कर दिया, तो हमने ज्यादा पे किया 3 महीने का, सो दिस इज ऑल्सो इट मीन्स बाय प्रीपेड। तो यहां पे उसका मीनिंग लिखता हूं, अगर ऐसे कभी आया तभी भी हम उसको बोलेंगे प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस। और मेरे एग्जाम्पल में, ये एक एग्जाम्पल है, सो मेरे एग्जाम्पल में प्रीपेड कितने महीने का है, फॉर कितने मंथ्स का हमने एक्स्ट्रा पे किया, 3 months. 3 मंथ्स। अब एग्जाम में सम में जरूरी नहीं है,
अपन जब सम्स करेंगे जरूरी नहीं है खाली 3 मंथ्स का रहेगा, एक कभी जून तक पे करने बोलेंगे वो लोग, या कभी बोलेंगे सितंबर तक पे किया है। अगर सितंबर 2020 तक पे किया तो हमको ये पूरा सीरीज अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जाना पड़ेगा, मतलब 6 मंथ्स का प्रीपेड आएगा। सो मंथ्स कैन चेंज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम पीरियड वी हैव पेड एंड व्हाट इज द ईयर एंडिंग, उसके हिसाब से मंथ्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखना है प्रीपेड ही होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके मंथ्स कैन बी 3 मंथ्स, कैन बी 6 मंथ्स, कैन बी 2 मंथ्स, वो हमको फिगर आउट करने हैं, ठीक है, बट इट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसा कभी आया तो। और अगर प्रीपेड है सो व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रीपेड, अपन ने अभी प्रीपेड का एंट्री किया ना ऊपर भी, तो ये भी प्रीपेड ही है। सो एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम, लेस प्रीपेड लेस होता है, लेस फ्रॉम, यहां पे लेस किससे करेंगे, इंश्योरेंस, Insurance. ये इंश्योरेंस Insurance प्रीपेड है, सो विल बी premium. डिडक्टिंग इट फ्रॉम इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, प्रीपेड का बैलेंस शीट, Asset side. Asset side. Balance sheet asset side. asset side. I hope this is clear. Okay. So I'm deleting this stuff. ये खाली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था, आई एम डिलीटिंग दिस। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, फिफ्थ हिडन एडजस्टमेंट दैट इज एक्सपेक्टेड। तो ऐसा आ सकता है, %10 बैंक लोन और ब्रैकेट में लिख के देंगे borrowed on 1st Jan 2020। आपने 1st Jan 2020 को लोन लिया है, 10% बैंक लोन है, 1st Jan 2020, और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है ये आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूं। सो अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन, अपने ऊपर भी लिया था अकाउंटिंग ईयर, हम कौन सा एंड हो रहा है एज्यूम करेंगे, 31 मार्च 2020। ये अगर हमारा अकाउंटिंग एंडिंग है तो क्या, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है, ऐसा कभी कॉन्सेप्ट आया तो मतलब क्या है, लोन लिया है हमने बैंक से, और कब लोन लिया है, तो लोन हमने लिया 1 जनवरी 2020 को, और अपना ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। क्लियर विद दिस, उसका मतलब कितने टाइम ने लोन लिया था, 2020 में हमने लोन लिया था। सो जैन फेब 2020, जैन के बाद फेब आएगा 2020, और फेब के बाद आएगा मार्च 2020। और अपना ईयर कभी खत्म हो रहा है, हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, हमारा ईयर मार्च में खत्म हो रहा है, 31st March. मार्च, तो मार्च में हमारा ईयर खत्म हो रहा है, यानी हमने जैन में Sir. ईयर खत्म हो रहा है, उसका मतलब कितना महीना हो चुका है लोन लेके हमें, जब ईयर खत्म होगा 2. मंथ्स हो जाएगा लोन लेके, 3 मंथ्स। 3 months. ओके, सो व्हेनेवर सच थिंग कम्स, तो हमको कैलकुलेट करना है कितना टाइम हो गया लोन लेके। तो ये मेरे एग्जांपल में 3 मंथ्स हो चुका है लोन लेके, और अगर 3 मंथ्स लोन लेके हुआ है तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट हमें क्या बताना चाह रहा है, सो दिस एडजस्टमेंट सेज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक लोन। सो दिस इज गोइंग टू से मी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, क्योंकि 3 महीना हो चुका है तो 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है। तो मेरे एग्जांपल में कितना मंथ्स का इंटरेस्ट आ रहा है, वो फॉर 3 मंथ्स। 3 sir. 3 months. 3 मंथ्स। आपको जरूरी नहीं है जब
सम्स आएगा तो 3 मंथ्स का ही होगा। अगर आपने लोन जैन में नहीं लिया, लोन उससे पहले लिया, समझो लोन आपने सितंबर में लिया या लोन अक्टूबर में लिया, तो अकॉर्डिंगली आपका 3 मंथ्स आएगा या 6 मंथ्स आएगा या 5 मंथ्स आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस सम, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर कभी सिचुएशन आया तो याद रखना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है अपने को, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो मुझे बताओ व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। चलो बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का एंट्री क्या है? आउटस्टैंडिंग का एंट्री क्या है? Add outstanding. ऐड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, Add particular बराबर। या इंटरेस्ट ऑन बैंक Interest. हम लेंगे तो दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हम लिखते कहां पे है जरा बताओ? बैंक लोन का आउटस्टैंडिंग हमने, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमने चेक किया था, देखो पहले आपने पढ़ा रहेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का कॉन्सेप्ट क्या है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट में ये देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यहाँ पे? सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बताओ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का 2 इफेक्ट हमने क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड ऐड टू लोन ऑन लायबिलिटी साइड। liability तो side. यही इफेक्ट वहां पे कॉपी डाउन कर रहा हूं, ठीक है। तो द सेम इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर दिस एंट्री, याद रखो। आई होप दिस इज क्लियर, समझा सबको? सो वेन एवर देर इज सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट विच इज एक्सपेक्टेड, हमको याद रखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रहेगा तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैंक लोन का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पीएनएल डेबिट में लेते हैं एंड ऐड टू लोन टेकन ऑन लायबिलिटीज करते हैं, ठीक है। ये रब कर रहा हूं, मीनिंग समझाने के लिए लिखा था। एंड द फाइनल थिंग, लास्ट हिडन एडजस्टमेंट्स दैट इज एक्सपेक्टेड 6th, जैसा हमने 10% बैंक लोन देखा था वैसा कभी कभी आ सकता है, समझो 8% इन्वेस्टमेंट्स। ये लोन है, ये इन्वेस्टमेंट्स है। सो 8% इन्वेस्टमेंट्स, या इन्वेस्टमेंट्स के बदले आ सकता है 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। So 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर नथिंग बट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट्स ही है। सो इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा वर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी हमको इन्वेस्टमेंट्स ही समझना है। जब भी हम गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड में पैसा डालते हैं उसका मतलब हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, इट मींस कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। आई होप दिस इज क्लियर। सो 8% इन्वेस्टमेंट, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में लिख के आ सकता है, बोरोड या बोरोड नहीं, इन्वेस्टेड ऑन डेट लिख के आएगा। समझो मैं एग्ज्यूम कर रहा हूं 1 अक्टूबर, ऊपर के एग्जांपल में मैंने 1 जनवरी लिया था, ये एग्जांपल में मैं 1 अक्टूबर ले रहा हूं। 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर रहेगा तो 2019 आएगा। 1 अक्टूबर 2019 में मैंने इन्वेस्ट किया है एंड ईयर एंडिंग यही ले रहा हूं। सो ईयर एंडिंग इज द सेम, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2020। अब यहां पे वापस क्या समझना है, हमने इन्वेस्ट कब किया? हमने इन्वेस्ट किया अक्टूबर में, ठीक है। और ईयर कब खत्म हो रहा है? ईयर खत्म हो रहा है मार्च में। तो इधर वापस मैं आपको सिनेरियो लिख के बता रहा हूं, हमने अक्टूबर में इन्वेस्ट किया। सो अक्टूबर कौन सा? 2019, ठीक है। उसके बाद नवंबर 2019, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। उसके बाद वाला मंथ कौन सा? दिसंबर 2019। और फिर दिसंबर होने के बाद जैन आएगा। अब ये जैन कौन सा? 2020। हम नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे 2020। जैन के बाद क्या आएगा? मार्च, सॉरी, जैन के बाद आएगा फेब 2020 और फेब के बाद आता है मार्च 2020। मार्च हमारा ईयर एंडिंग है, ठीक है। तो हमने अक्टूबर में इन्वेस्ट किया 1 अक्टूबर में और मार्च हमारा ईयर एंडिंग है
तो कितने टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट करके हो गया है. सो इन्वेस्टमेंट करके अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना टाइम इन्वेस्टमेंट हो चुका है करके 6 months. ठीक है, 6 months. इन्वेस्टमेंट 6 करके months. हो गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, वेन एवर सच टाइम कम्स एंड 1 अक्टूबर आएगा और मार्च ईयर एंडिंग रहेगा तो समझो 6 महीना हो गया है. सो 6 महीने का यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग, दे आर गोइंग टू से अस 6 months का आउटस्टैंडिंग this is interest on investments. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. मुझे बताओ, हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स का एडजस्टमेंट्स क्या पढ़ा है? हमने ऊपर पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स का एडजस्टमेंट. चलो बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट क्या था? सो देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, क्या करेंगे हम उसको? पीएनएल कहां पे लिखने वाले? क्रेडिट में फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड. तो यही इफेक्ट हम कॉपी डाउन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का. पीएनएल क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट क्या था उसका? बैलेंस शीट Sheet asset side. एसेट साइड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ये आपका हिडन एडजस्टमेंट्स है. तो याद रखना है, हमें जब सम्स हम करेंगे तो ये 24 एडजस्टमेंट्स हमको याद रखने हैं और ये 6 हिडन एडजस्टमेंट्स आपको याद रखने हैं. मतलब टोटल हमने जो एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं वो ऑल टुगेदर हमने कितने एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं? 30. सो वी हैव लर्नड ऑल टुगेदर 30 एडजस्टमेंट्स. बराबर है, 6 hidden adjustments and 24 normal kind of adjustments that we have studied. I hope this is clear. ठीक है,